Ma'am, you're not audible. I'm not audible. Okay. My question is that what can you conclude from this value, from this expression of A? Is here A is dependent on time? No, ma'am. No, ma'am. It's not dependent on time. What that means? It means that during the entire path, if this kind of motion is there, your velocity is changing because it is dependent on t. But your acceleration for the entire path is remaining constant. Ma'am, it's uniform Same. It's Equal. uniform motion. Uniformly accelerated motion whose acceleration value is not changing, whose acceleration is what? Remaining constant. It is having a constant acceleration. Is it fine? What is the difference between A2 or A2t? Imagine you are getting A is equal to 2t. What is the difference between two values? What that means? Ma'am, it's not Ma'am, uniform and it is uniform. constant, but the second is not constant. Yeah, because it means that this acceleration is changing. This acceleration is not constant. It is a varying acceleration. And what about this one? It is a constant acceleration. It's not changing. Huh? Yes, Gargi? And anything you want to add? No, ma'am. गाला खाई गाला खाई हल्के है किसने बोला हल्के है अरे नहीं है हल्के खोल के दिखाऊं दिखा बेटा उतना भारी कौन है खोल के दिखाऊं कि नहीं खोल के दिखा दे फिर वो ले लेंगे ना उसका ले लेंगे तो फिर देख लेता है Chal. Okay, now can we start with the numerical part if all this stuff is clear to everyone present here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. Question number. Let's suppose this was question number 1. It's my question number 2. I'm writing down xt as something 40 cube plus 2t square minus 1. 40 cube plus 2t square minus 1. Where all are in standard units. Standard units. What you need to calculate? First thing is average velocity in or between t is equal to 0 to 1 second. Is the board visible to everyone? Each and every portion of the board visible? Ma'am, it is written -1. Yes, ma'am. yes ma'am This is minus 1. Ma'am, Second please part. repeat the first What point. have you done average velocity के बाद? Between t/w between. Fine. Instantaneous velocity at t is equal to 2 seconds. Third one, average acceleration between t is equal to 1 to 2 seconds. Fourth, instantaneous acceleration at t is equal to 1 second. 4 parts need to be done step by step. Note it down. We'll discuss one by one. Ma'am, first part में repeat कर दो इसका. First part में Ma'am, value ma'am repeat कर दो ठीक है. 0 to 1. to 1. It is 0 to 1 second. T is equal to 0 to 1 second. Now it is visible. मैम थर्ड में बिटवीन Yes, के ma'am. बाद क्या है? Between t is equal to 1 to 2 second. Between t is equal to 1 to 2 second. मैम फर्स्ट का आंसर 8 है. First answer 8. एक बच्चे ने और बताया था अभी first answer 8. Is everybody getting the same answer as Siddharth? Yes, ma'am. What is the let's suppose sorry second का भी आ गया आपका? यस मैम 56. Okay, ठीक है तो Ma'am, ट्राई करते 56. हैं सेकंड किसका आ जाए करते हैं जिसको नहीं आता प्लीज एक बार देख लीजिए and help me out as well. First part, average velocity. Who will tell me the required formula of the average velocity? Delta What x is the upon delta t. Delta on t2 minus t1. What's the meaning of this x2? The value of x when time is T2. t2. Yeah. So now tell me
What is T1 and T2? बेटा T1 कितना है स्टार्टिंग वाला which is 0 second. T2 कितना है 1. 1. So when x is 0, what that means x 0? It means I'm calculating x1 only. Check it out. When time t is equal to 0, what I'm calculating? Yes, Value of x1 only or not? Now tell me. Put the Yes. value of t 0. What you are getting? सब जगह t को 0 put करो. minus What you are 1. getting? Minus minus 1. What is x2 when time is what? Time is what? 1. Just put the value of 1, 1, 1 everywhere. 4 plus 2, 6 minus 5. 5. 5. So the value is 5 minus minus 1 upon what is the time change? 1 only. मैंने कुछ गलत तो नहीं किया तो आपका आंसर 8 क्यों आ रहा है? मेरा तो 6 आ रहा है. मैम Ma'am, आंसर एकदम 4 आ रहा है. मैम मेरा भी 6 ही आ रहा है. मैम 6 आ रहा है. मैम मेरा भी 6 आ रहा है. ठीक है. मीन हम कुछ सॉल्व कर दिया. बेटा 4 नहीं आएगा बच्चे, माइनस रहना बच्चे, वो ऐड हो जाएगा ना बेटा. ठीक है. -1 है ना बच्चा, माइनस 2 2 है तो ऐड नहीं हो जाएगा बेटा. Is it fine to everyone? The answer is 6 not 8. If you are finding any mistake, let me know. होता है मैंने गलती की हो, जल्दी बताइए. If I've done anything wrong? मैम मैंने पहले कंप्लीट कर दिया था वो तो अच्छा आपने टाइम डिफरेंट कर लिया, कोई बात नहीं. अब हम लोग सेकंड पार्ट पे जाएं. It is instantaneous velocity. Now tell me what is the formula of instantaneous velocity? dx by Delta dt. D. Differentiate. So my first step is to differentiate my x. Now just फटाफट differentiate करता हूँ. With 12t. 30. 12t square. Ma'am 20 square plus 40. 40. And third term is the answer already seen for third term. And what the time interval for which I want to find the answer is the second one. 2 So just put the value of 2 to the 4. 12 for the 48. 48 plus 8. मैम 56. 56. Am I right or not? ठीक है. अरे तुम्हें टीचर को यस में बोलने का मौका मिल रहा है, एटलीस्ट खुशी खुशी जज करो. यस मैम. Yes, ma'am. जज आओ, ये रॉन्ग कैसे बोलो, मैं तो डरती हूँ. चलो थर्ड बताओ. Instantaneous average acceleration. What is the formula of average acceleration? Anyone from your side? मैम v2 minus v1 upon t2 minus t1. Proud of you. Delta V by Delta V delta T upon minus V1 upon T2 minus T, whatever you want to say. चलो मुझे V2 की वैल्यू बताओ. T2 क्या है? What is T2? 2. मैम एक बार टाइम बता दो. 2. Commutative T is equal to 1 to 2. जो पहले वाला उसे T1 कहते हैं, दूसरे वाले को T2 कहते हैं. ठीक है बेटा? मैम दिख नहीं रहा था ठीक से. ठीक है. अब तो क्लियर है? Where is the expression of V? Put कहाँ करूँ? Expression of V है कहाँ? Where is expression for 12t V? square plus 4t. हाँ जी, अगर मैं VT is 12t square plus 4t, this we have calculated V as a function of time. It was not given to me. I have to calculate it for my further purpose. या मैंने पहले कर ही लिया इस पार्ट के लिए. And if this part was not given to me, directly ये पूछा होता, तो मुझे ये expression चाहिए था. Yes or no? तो मैं इसको निकालती. Fine. What is the But वो value? instant velocity क्या है? बेटा ये वो नहीं, instant नहीं बेटा, वो time independent velocity का है. इससे मैं instantaneous निकाल सकती हूँ. Particular instant निकाल सकती हूँ. We can say that it's an instantaneous velocity time. Instantaneous velocity expression है. कह सकते हैं ऐसे. इससे different instant का time का velocity निकाल सकती हूँ. Yes, you can say that. चलो, what is V1 at time? मैम At time? 16. Ma'am 1. 16 is the answer. Very good. What is V2 at time? 2. 2. 56. Ma'am Ma'am, it's 56. 56. That's the मैम आंसर इज 40 मीटर पर सेकंड. Sorry. मैम आंसर is 40. Yes. Let's get the answer is 40 or not. Average acceleration. So subtract the two. What you are getting? Ma'am 40. 40. And the time change is what? 1. Ma'am 2 minus 1. मैम 1. 40 meter per second square only. Thank you. Very good. Fourth part.
What I need to calculate for the fourth part? Instantaneous acceleration. Ma'am, dv by dt. Instantaneous acceleration, only one formula. dv by dt. by dt. 24. So now can Ma'am, 24. 24. 24. एक formula कुछ है? Ma'am, 24 Ma'am, t plus 4 plus And 7 what square. I use this expression for 80. वो तो अच्छा आंसर 24 आ जाएगा. मैं तो एक ही एक्सप्रेशन पूछ रही हूँ. Ma'am, 24 t plus 4. 24t plus 4. Very very good. This is the expression for A. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. करने के बाद and what time I have given you? I have given you time t as 1 second. 1 second. What's the answer? 28 meter per second. Ma'am, 28. 28 meter per second. Am I right? Is it too difficult to handle these kind of questions? What do you think? No, ma'am. If we know the concept, if we know the idea that how to deal with it, they are so damn easy. There's nothing to worry about it. Okay, rub down the left hand side parts that I can write. It will take time to just write up all as well. Question तो लिख लिया होगा ना सबने? Can I rub it? Note it down, everyone. We can do some more question as well. No issue. So the questions chapter में questions ही Ma'am? कमी नहीं. And Ma'am, in third part 5, have we taken the equation 12t square plus 14? yeah, I want the velocity v2 means what? Velocity at time t2. v1 is what? Velocity at time t1. How can I find the velocity at time t2 and t1? It means I need some equation where the v is a function of time. At different time interval, I need the velocity. So for that, I need an equation where velocity is dependent on time. तो मैंने निकाल दिया बच्चा, ठीक है? Okay, ma'am. क्योंकि बेटा मुझे पता है कि आपकी टाइम t1 पे कितनी स्पीड थी, t2 पे कितनी स्पीड थी, मुझे पता तो है ही नहीं, क्वेश्चन दिया तो है ही नहीं. Yes. So note it down, everyone, and let me know if you're done with the part. I will give you some other things as well. Ma'am, noted. Note it down. So let us give you some interesting question also. Chalo. Wait for 1 minute. Then we'll do the equation of motion by calculus method when you are okay with this. Now, one more thing I want to tell you that. What's the formula of instantaneous velocity? Who will tell me? Jaldi se, fast. ds by dt. Delta v upon delta t. dx upon dt. Delta nahi beta. Delta means for average. I'm asking about the instantaneous. Is it fine? Yes, ma'am. Okay. Now imagine in this kind of equation what we have done. If I know the value of x, I can easily find the value of v. Is it so? If I know the value of x, I can easily find the value of v. There's no issue. I just have to differentiate it. But imagine if I'm given the value of v and somebody asks me to calculate the value of x, what should I do? Integration. ऐसे Cross multiply. बिल्कुल जैसे मुझे v पता है, मुझे x निकालना है बेटा, तो मुझे अगर x निकालना है, मुझे v पता है, I will take this dt that side. Yes or no? Yes. v dt is equal to dx. Now what does this dx means? Only a small portion of x. Only a small portion of x. But if I need the complete value of x, क्या सिखाया था बच्चा? Differentiation is breaking a system into small parts. Integration means what? Collect each and every small part answer and find out the total result. Is it so? Yes. Yes or no? So for that, if I know the one part and I want to find out for the entire region, what we do? We do integration. Is it fine or not? Yes, ma'am. Yes, Everyone ma'am. present here in class A also and B also. B also. Is it fine बेटा? अगर मुझे एक पार्ट का आंसर पता है, Last को बता दो. Yes, हाँ ma'am. लास्ट Ma'am, समझाना last ही one. होगा. Yes, ma'am, यही वाला. मैं सिंपल ही बोल रही हूँ. अभी तक मुझे x पता था, मुझे b निकालना था, तो हमने डिफरेंशिएट किया था. कोई दिक्कत है चित्रेश? मुझे x पता था, No, मुझे b निकालना है, तो हमने सारे फॉर्म में डिफरेंशिएट किया. लेकिन अगर मुझे v दे रखा होता और मुझे x पूछा होता, अब मुझे b दे रखा है, मुझे x पूछा बेटा, जो मुझे निकालना है उसको एक तरफ छोड़ते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं. तो मुझे v दे रखा था, मुझे x निकालना है. बेटा क्या ये x है या ये छोटा सा x है? मुझे तो पूरा x निकालना है. dx का मतलब क्या होता है? Only a small value of x. But मुझे क्या निकालना है? The complete value of x. हमें differentiation integration में क्या सीखा था? Why we do the differentiation integration? Anyone from your side who will help me out? Why we are doing it? What To was the make need our for doing it? calculation easy. Yeah, it is making our calculation easy. So when the system is very, very non-uniform,
I will divide the system into small parts and find the answer for only one section. The finding the answer for only one part is known as differentiation. And when I'm finding the answer for the entire path, what we have to do? Tell me. Integrate. Integrate. तो जितने चीजों को इकट्ठा कर दो ना, तो we are integrating. ये dx मतलब क्या हुआ? अभी आपने एक पार्ट का आंसर निकाला. क्या आपको dx निकालना है? नहीं, आपको कंप्लीट x निकालना है. तो आपको सारे dx जोड़ने पड़ेंगे. तो जोड़ने को क्या कहते हैं हम लोग? इंटीग्रेटिंग both sides. Is it fine? Yes, ma'am. पक्का? तो कोई बात नहीं है कि नहीं लिखा जाए, क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा. आप अभी क्वेश्चन लिखिएगा. Okay. The distance, write down the distance x of a particle is related to time. The distance x of a particle is related to time by the equation t is equal to root x plus 3. T is equal to root x plus 3. Find the displacement of particle. Ma'am, can you please repeat the question? The expression for time, the expression for displacement in terms of time is given to you. Just write down this expression. That's all. Follow me. Just write down this expression. T is equal to root x plus 3. Written. Nothing else is given to you. Only this line is given to you. Then you have to find the displacement. Find the displacement when velocity is 0. When velocity is 0. Try it out. What's the meaning of velocity? What's the formula of velocity? Ma'am, velocity is equal to displacement. Distance upon time. Very good. See, we know that we have two types of velocity. Your average velocity as well and your instantaneous velocity as well. But right now, because it is a time-dependent function, which means that I'm dealing about the instantaneous velocity. है ना? चलो, अब मुझे पता है for the instantaneous velocity, the formula is what? dx by dt. But I should have a formula of x. बेटा क्या कोई दिक्कत नहीं है, बुद्धू बनाने के लिए लिखा हुआ है, कुछ नहीं बेटा. x को यहाँ छोड़ो, 3 को यहाँ ले जाना. It's a root x. अब कैसे किलो root x के साथ में क्या करते हैं root x के साथ में? मैम we have square to कर square दो. it. मैम t minus 3 whole square is equals to x. Yeah, just do it. मैम It t means minus 3 whole square is equals to x. x t minus 3 whole square is equal to x. Very good. Very good. T minus 3 का whole square is equal to x. अब आपके पास x आ चुका है. जब आपके x आ चुका है तो मुझे वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? बहुत बड़ी बात है बच्चा. No, ma'am. डिफरेंशिएट करेंगे, है ना? आपको पता है कि पावर को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? Yes, ma'am. 2 into t minus 3 हो जाएगा. Very good. So I want to find out the velocity. जो उन्होंने कहा है कि जब velocity 0 हो तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो. लेकिन भैया पहले वेलोसिटी तो बताओ कि वेलोसिटी की वैल्यू है क्या. उसको 0 से भी तो इक्वेट करूंगी. तो पहला टास्क होता है चलो v निकालते हैं. और मुझे पता है v किसके बराबर है? dx by dt के बराबर है. उसके लिए मुझे x चाहिए तब तो डिफरेंशिएट करूंगी. तो दिस एक्सप्रेशन को आज बेटा. Ma'am, is velocity equal to -6? Velocity is coming out to be, let me see. Velocity is coming there. बेटा velocity तो 0 बोला है ना बेटा. Velocity तो 0 बोला है. Find the displacement when velocity is Okay, ma'am. 0. Find the displacement at that time when velocity is 0. समझो इक्वेशन को. Ma'am, 2t Ma'am, x is coming out to be 2t minus 6. 2t minus 6x नहीं है बेटा, वो v आ रहा है. कनिष्का, वो v आ रहा है. 2t minus 6 Yes, ma'am. है ना बेटा. और क्या बोला है? v को क्या पुट कर दो? Ma'am, 0. 0. तो जब b को 0 पुट करोगे तो किससे क्या निकल जाएगा? t की वैल्यू आ जाएगी. Yes, t ma'am. equals to कितना आ गया?
t कितना आ गया? मैम 3 3 सेकेंड। तो अब ये क्वेश्चन में बोला गया था कि भैया जब वेलोसिटी 0 हो ना तब बताओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या थी। तो वेलोसिटी 0 कब है? t is equal to 3 सेकेंड से वेलोसिटी 0 है। तो उस t is equal to 3 पे आपको x की वैल्यू निकालनी है। पुट करो इस इक्वेशन में, आंसर 0 आ जाएगा। देखो नहीं समझ आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सब सामने देखो, कोई दिक्कत मैम नहीं। वन डाउट। हाँ बेटा बोलो। मैम क्वेश्चन में तो हमें x डिस्टेंस दिया है तो हमने बाद में उस वेलोसिटी मान के 0 क्यों किया? बेटा इन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा है कि टाइम एंड पोजीशन आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन, ऐसे बोला। क्वेश्चन हम सब सुनेंगे अभी बाद, जिसको आता है वो भी सुनेगा। उन्होंने कहा टाइम एंड द डिस्प्लेसमेंट आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन। उन्होंने बोला ऐसे, इन्होंने बोला है कि इक्वेशन दे दी है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द वेलोसिटी इज 0। डिस्प्लेसमेंट बेटा बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या कांस्टेंट है या टी पे डिपेंडेंट है? डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, डिपेंडेंट है। मतलब x की वैल्यू बेटा एक तो होगी नहीं, हर टी पे आंसर अलग होगा, है ना? हर टी पे आंसर अलग होगा। तो उन्होंने अब मैं कौन सा आंसर बताऊं, तुम किस टी की बात कर रहे हो, ये मेरा क्वेश्चन आता है। फिर बोला हुआ है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तब निकालो, उस टाइम पे निकालो जब क्या 0 थी? वेलोसिटी वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी को 0 पुट करके वो टाइम निकालूंगी मैं कि भैया वो ये बोल रहे हैं जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 थी उस टाइम का x निकालो। तो मैं अपने टाइम निकालने के लिए पहले मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ी। उस वेलोसिटी को मैंने 0 से इक्वेट किया और फिर मैंने कहा भैया मेरा टाइम आ गया है कि भैया वेलोसिटी इस टाइम पे 0 हो जाएगी। उस टाइम मैंने x निकाल लिया। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो सामने देखो, मेरी हेल्प करो। कल समझ आया बेटा, नहीं आया? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोबारा से। जिसको समझ नहीं आया उसे खत्म, एक बार पूरा डाउट क्लियर कर लेते हैं। एक्सप्रेशन मेरा ये बनता है, मुझे रूल हटाना था तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। तो इज इट राइट और नॉट दिस एक्सप्रेशन? मैंने x निकाल दिया, कैसा वैसा दे रखा था, मैंने सीधा सीधा निकाल दिया। अब मुझे बोला है कि वेलोसिटी 0 कब है ये सोचो, क्योंकि उसी टाइम निकलेगा और उसी टाइम पे तुम x निकाल पाओगे। तो मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला तो dx/dt होता है। नाउ आई हैव टू डिफरेंशिएट दिस टर्म। बेटा चेन रूल लगा लेंगे, सिंपल। क्या सिखाते हैं? पावर सॉल्व करना। बताइए क्या सॉल्व करते हैं? पहले पावर सॉल्व करते हैं। 2t - 3 t 2 - -3 1 पावर इसका रिड्यूस कर आंसर दिया। 0 आ रहा है। हाँ 0 है, पावर रिड्यूस कर दिया बेटा। फिर हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये समझाया था बेटा। पहले Sum पावर 1 आ फिर रहा है। ब्रैकेट। हाँ ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद क्या डिफरेंशिएशन आएगा? ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 बताओ। 1 सिंपल मेरा एक्सप्रेशन में ना 2t - 3, हाँ कि ना? Yes, ma'am. ये किसको प्राप्त बोला हुआ है? इसको क्या बोला हुआ है? ये किसके इक्वल है? 0 तो यहाँ से बेटा t की वैल्यू क्या आ गई? 3. 3 उन्होंने कहा अब टाइम निकल गया भैया। उन्होंने कहा इस टाइम पे मैक्स पूछा गया मुझे कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी वाज 0। तो मुझे x निकालना है व्हेन t इज 3। तो जो मेरा आ गया t - 3 बेटा था ना स्क्वायर, तो 3 - 3 आंसर कितना आ गया? 0। Am I right? Or it is very very difficult to understand? कोई बात नहीं, दिल खोल के पूछो, पहली बार कर रहे हो। समझ आया नहीं आया? Yes, ma'am. श्योर ना? एक ही बच्चा बोला, बाकी सब बोल रहे हैं क्या शुरू हो गया? ऐसा कुछ है? ठीक है चलो, अगर आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखो। एंड डोंट फील शाय टू आस्क एनीथिंग, यू आर हियर टू लर्न। यहाँ पर इसलिए नहीं बैठे कि आपको आता है, आता भी होगा फॉर श्योर, लेकिन मैम समझने we have multiplied it 1 बेटा हम कैसे बेटा ब्रैकेट डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं बेटा? तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं बेटा? पहले पावर को सॉल्व करते हैं। ma'am. चेन रूल बेटा क्या कहते हैं? पहले पावर को सॉल्व करते हैं सौरभ। तो मैंने पावर Yes, को ma'am. सॉल्व किया, पहले 2 मल्टीप्लाई किया, एक पावर रिड्यूस कर दिया, ठीक है? yes ma'am. पहले पावर को सॉल्व करते हैं, फिर हम ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना बेटा, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? t का डिफरेंशिएशन dt/dt क्या समझाया था? dt/dt 0 नहीं, t का 3 का डिफरेंशिएशन बेटा 0 होगा। ये तो कांस्टेंट है, क्या ये भी कांस्टेंट है? no ma'am. तो t का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होगा? करके बताओ, सोच के बताओ कितना होगा? क्या समझाया था मैंने? दैट Ma'am, dt/dt dx/dx dy/dy ये सब किसके बराबर होते हैं? बराबर 1। तो इसका पूरे का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होगा? 1 ही है ना बच्चा? yes ठीक है सौरभ, कैन आई मूव फॉरवर्ड? understood yes ma'am. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मैम हाँ जी
मैम हमने जो इक्वेशन निकाली थी 2t माइनस 6, उसमें भी 3 पुट करेंगे तो यही आंसर आएगा, तो उस पे से भी सही है ना? बेटा लेकिन जब मैं यहाँ बेटा पुट करूंगी तो वेलोसिटी 0 आएगा बेटा। मुझे थोड़ा ना वेलोसिटी 0 निकालनी थी, मुझे थोड़ा ना वेलोसिटी निकालनी थी, मुझे निकालना क्या था? क्या मुझे ये मेरा जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो 2t जो तुमने बोला, ये जो v इज इक्वल टू 2t माइनस 6, बेटा ये किसकी वैल्यू है? क्या ये x की वैल्यू है? मैम बेटा इसको 0 पुट करोगे तो t कितना आएगा? 3। अब तुम सोचो t दोबारा यहाँ पुट करोगे बेटा 3 की वैल्यू, तो फिर 0 आ रहा है। ये तो मुझे पूछा ही ना बेटा, मुझे बोला है जिस टाइम पे इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 में पुट कर सकते हैं ना। हाँ जी, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मुझे v से तो x तक पहुंचना है। v तो 0 बता ही रखा है पहले से, दोबारा क्या करूं? ठीक है कनिका या नहीं? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। x is given to you 4t square minus 15t plus 25. x is equal to 4t square minus 15t plus 25. अभी भी डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, कोई जल्दी नहीं है, ऐसा नहीं कि एक बार बताने में 2 बार बताने समझ आ जाता है, फिर नहीं आता समझ। सबकी अपनी अपनी मर्जी है, नहीं कुछ कान में गया होगा, कोई लैग हो गया होगा, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लेकिन डाउट रखना नहीं। राइट डाउन दिस क्वेश्चन x। क्या करना है इसमें? हाँ लिखो, फाइंड द पोजीशन, find the position, velocity and acceleration at t is equal to 0. Find position, velocity and acceleration at t is equal to 0. Then second part, when will the velocity of particle become 0? When will the velocity of particle become 0? Third part, what type of motion is this? I hope everybody is writing. Sorry? Uniformly accelerated motion. It is having uniform acceleration. Very good. Okay, so what type of acceleration? This is the fourth. This is the third part. So try to find the solution. What you need to calculate the first part. Everyone. Position, velocity and acceleration at t equals to 0. T is equal to 0. तो पोजीशन निकालने के लिए कोई ज्यादा जंग लड़नी पड़ेगी बेटा। ये पोजीशन दे तो रखी है। Yes, 25. 25. Very good. Proud of you. Position at t is equal to 0. If I want to find out, तो पोजीशन के ही फॉर्मूले में, एक्सप्रेशन में t को 0 पुट कर दूं, यही तो है ना बच्चा। एवरीवन ठीक है? संकेत नीचे बताओ। यस मैम। हम वेलोसिटी -15 आ रही है और एक्सेलरेशन 8 आ रहा है। प्राउड ऑफ यू। वेलोसिटी के लिए क्या किया संकेत ने? हम x के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे। v आ जाएगा। फिर v की एक्सप्रेशन में हम t को क्या पुट करेंगे? 0। तो हमारा आंसर आ जाए। सिमिलरली एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे आयुष? मैम क्या? एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे आयुष? मैम उसको डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे। प्राउड ऑफ यू आयुष। वेरी गुड। तो अब मुझे बताओ, मुझे x निकालना है t is equal to 0। जल्दी से फटाफट से बताएं। 25 because 0 minus 0 plus 25, answer is 25 meter only. And my next step is to find out the velocity. पहले v तो है ही नहीं, तो v का फॉर्मूला क्या होता है? dx by dt। चलो डिफरेंशिएट बताओ। Who will tell me? And anyone else please take a chance. 80 minus 15. Proud of t minus 15 plus 0. I need to put the value of v as t as 0. अब बताइए कितना आंसर बना? मैम -15 meter per second. Proud of it. Is everybody is getting along? मतलब it's everybody is fine with this topic. अब next step is acceleration. वो भी नहीं है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? dv upon dt. dt। तो बताइए कितना आया अभी? 8 मैम 8 मीटर पर सेकंड। हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड। अब चाहे t को 1 सेकंड हो, 0 हो, 3 हो, कुछ भी हो, आंसर तो क्या रहेगा? 8 because it is not dependent on time. ठीक है ना? So what kind of motion is this? Is the acceleration is changing with time? No.
Uniformly accelerated. Uniform acceleration. Motion is having uniform acceleration. A second part is left out. हाँ जी बेटा. Second part का 15 by 8. Acceleration is 8 meter per second square. How the acceleration is 8 meter per second square. ये पूछ रहे हैं आप? Yes, ma'am. बेटा वंशिका A कैसे निकालते हैं? dv by dt करते हैं बेटा, डिफरेंशिएट करते हैं ना वेलोसिटी को. यही करते हैं. ये फॉर्मूला याद है? Yes, ma'am. Now I got it. ये वेलोसिटी एक्सप्रेशन डिफरेंशिएट कर दिया इसको. अच्छा, सेकंड पार्ट था when the velocity particle becomes zero. अब ये वेलोसिटी है, ये जीरो कब बनेगी? मतलब क्या पूछा है? किस टाइम पे जीरो बनेगी? तो क्या करो? इसको इज इक्वल टू हम इज इक्वल टू 0 कर दो. जीरो कर देंगे, टाइम आ जाएगा. तो बताओ ये कब जीरो बनेगी? 15 by 8 सेकंड. 15 by 8 Ma'am, 1.8 seconds. 1.87 seconds. Very good. Very, very good. So the second part was, ये तो पूरा first part था. Second part was I need to calculate that when v is 0. When v is 0. So v is 80 minus 15 is equal to 0. This t is equal to 15 by 8 or 1.87 seconds. Is it too difficult to understand? Tell me frankly. कोई शर्माने की बात नहीं है. No, ma'am. जो पहली बार 11th करेगा तो पहली बार तो करेगा. हाँ जी बेटा. बस लेकिन जो शर्माएगा, छोड़ ये बोलेगा, वो 11th में पास बेटा नहीं हो पाता. बस ये दिक्कत है और छोटी सी और कोई दिक्कत नहीं है. Ma'am, this is an uniformly accelerated motion. Yeah, it is having uniform motion. Very, very uniform acceleration. Very, very good. Proud of you. और क्वेश्चन दो बेटा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट डाउन क्वेश्चन. अब थोड़ा सा ना चलो उस क्वेश्चन को, लेकिन मुझे लगता है उस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे आपको ना कुछ कराना चाहिए, तब जाके वो क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे. राइट डाउन एट द टॉप इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड. राइट डाउन. एवरीवन राइट डाउन. आई होप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर क्लियर, जिसमें डिफरेंशिएशन करना है. पक्का हो जाएगा. अब हमको सिर्फ इंटीग्रेशन करना होगा, उसके लिए एक बार हाथ साफ हो जाए ना कैलकुलस मेथड में, तब हो जाएगा. Write down equation of motion by calculus method for everyone. How many equation of motion you know? 1, 3. 3 we know. And in our civics syllabus of 11, we have fourth equation of motion also. We will deal it. No worries. There is no issue. Firstly, let us do one part, that derive the equation of motion. Derive the equation of motion. What is the heading? Derive the equation of, just write down the question or write down the equation of motion by calculus method. Equation of motion by calculus method, or derive the equation of motion by which method? Calculus. What is the meaning of calculus? Differentiation integration. It's a branch of math which comes under differentiation, which deals with differential integration. Okay, if you remember your class 9th, you have derived this equation of motion with the help of graphical method. याद है ना? वो graphical method किया था. Area trapezium बनता था कभी, याद है? If you remember equation of motion. Yes, ma'am. वो trapezium में prism बनते थे ना, 3 equation derive की थी आपने different area के साथ में. अगर आपको याद हो तो. ठीक है, चलो अब करते हैं. हमें start किससे करना है? हमें derive करना है. पहली what is the first equation of motion? जल्दी से बता दो जल्दी से. First equation of motion. V is equal to U plus AT. U plus AT. Okay. अच्छा, मेरे पास ना कितने फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन वाले? एक फॉर्मूला V का है, वो क्या है फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में? V का फॉर्मूला x के साथ dx upon dt. ओके. और दूसरा बेटा फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का? वो किसके साथ बताया? बताइए. dv upon dt. सबसे ब्यूटी बेटा स्टार्टर की क्या? you know that how many formulas are there. ये गिन चुके 2-4 तो फॉर्मूले हैं. So now I want to derive by calculus method. तो कैलकुलस को यूज करना पड़ेगा. Derive क्या करना है? Know that. अब now you have 2 equation. Which equation you will use? बता. सामने दिख रहा है. First one. First one. Do I need any x here? X चाहिए मुझे. क्यों निकालूं x? Second one. Second one. So मैंने लिखा using this equation a dv by dt. ये मेरा पहला स्टेप है. मैंने कहा था यूज कर कैलकुलस को, मैंने कैलकुलस को यूज कर लिया. ओके.
Do I need to calculate V और A चाहिए? Sorry, मुझे A चाहिए या मुझे V चाहिए इक्वेशन में? मैम मैम V मुझे V निकालना है, मुझे V की इक्वेशन निकालनी है। बेटा V निकालना है, इस dt को क्या करूं? उस वक्त ले जाऊं? यस मैम It means dV is equal to A dt. Am I right or not? यस Yes, This ma'am. is my हम अब इंटीग्रेट कर देंगे. बिल्कुल। बेटा एक बात मुझे आपसे एक चीज पूछनी है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, ओके? ये चीजें ना बहुत मैटर करती है, द स्मॉल थिंग्स। व्हाट इज इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन दैट दिस इज गिविंग यू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? हाँ कि ना? इंस्टेंटेनियस, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दे रहा होगा, ये सीखा हमने, हाँ कि ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस फॉर्मूला इट इज, ये जो आपको t है, क्या ऐसा है इस फॉर्मूले में कि मैं आपसे पूछ रही हूँ t 2 सेकंड पर कितनी वेलोसिटी होगी? क्या ये फॉर्मूला ये बताता है? क्या ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि you are having a ball in your hand, let's suppose you have thrown the object with some velocity u, और 2 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी बनेगी? वो ये क्या बता रहा है? 2 सेकंड में या 2 सेकंड पर? मैम 2 सेकंड पर सेकंड पर या में? ड्यूरेशन में. Let's suppose I'm starting from this, अगर ये सिचुएशन समझ नहीं आई, let's suppose I'm starting from here, let's suppose t is equal to 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u रहा, यही होता है बेटा, u स्टार्ट बाय इनिशियल वेलोसिटी, and let's suppose t is equal to 2 seconds, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक इस पे v वेलोसिटी बन गई, तो ये जो एक्सेलरेशन है ये पूरे टाइम की है ना बच्चा, है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. से लेकर ये बनने में इसको पूरे 2 सेकंड्स लगे, हाँ कि ना? पूरे 2 सेकंड लगे u से लेकर v बनने में, यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, तो मतलब ये तो आपका एक इंस्टेंट का है और ये पूरे टाइम चेंज का है ना, कि u से v कितना टाइम में बना। तो बेटा आप मुझे बताया, अगर इतनी सी बात समझ आ गई है तो ये सिर्फ एक इंस्टेंट का है, छोटा सा पार्ट है, मुझे पूरा आंसर निकालना है। व्हाट शुड आई डू? इंटीग्रेट. और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ओके? आई हैव डन इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन इधर लिखा, यहाँ भी इंटीग्रेशन कर दिया। अब वेट करो, व्हेन आई एम डूइंग इंटीग्रेटिंग आई हैव टू पुट द लिमिट्स और नॉट? Yes, रिमेंबर ma'am. इंटीग्रेशन में थोड़ा अपर लिमिट लोअर लिमिट, ओके? यहाँ पर लिमिट किसकी आएगी? वेलोसिटी की या एक्सेलरेशन की? किसको जोड़ रहे हो? क्या ब्रेकडाउन है? मैम राइट हैंड साइड पे. राइट हैंड साइड मैम टाइम की. टाइम की, यहाँ पर किसकी लिमिट आएगी? टाइम की, और यहाँ किसकी लिमिट आएगी? वेलोसिटी. When time t is equal to 0, what is the velocity? क्या सिंबल देते हैं हम लोग? U. Sorry? U. U. U initial. When time t is equal to t, what is the velocity? V. आप समझ आया कैसे लिमिट्स पुट करेंगे क्वेश्चंस पे, कैसे डील करेंगे क्वेश्चन को? इस t पे ये वेलोसिटी थी, इस t पे ये वेलोसिटी थी, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे इकट्ठे करके दो, यही बोला है इस क्वेश्चन में। इंटीग्रेट करो। समझ नहीं आया वाला स्टेप। चलो कोई बात नहीं, अब दोबारा से बोलती हूँ। ये मैंने इंटीग्रेट क्यों किया? बिकॉज दिस इज ओनली फॉर अ स्मॉल पार्ट, आई वांट द आंसर फॉर द एंटायर टाइम रेंज, 0 से लेकर t तक पूरा आंसर निकालना है मुझे। बेटा तो मैंने इंटीग्रेशन किया, आई हैव टू पुट अ लिमिट, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, आई हैव टू पुट अ लिमिट। नाउ टेल मी व्हिच लिमिट शुड आई यूज हियर? यहाँ पर लिमिट किसकी होगी? टाइम की होगी या नहीं होगी? लेफ्ट राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे लिमिट किसकी होगी बेटा? किसको इकट्ठा कर रहे हो? टाइम को इकट्ठा कर रहे हो। फ्रॉम वेयर टू वेयर मुझे बताओ। देखो ये सिस्टम था, t is equal to बेटा 0 यहाँ था, लेट्स सपोज t टाइम यहाँ था, इस इक्वेशन अकॉर्डिंगली t is equal to 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u थी, एंड बेटा t टाइम पे वेलोसिटी कितनी बन गई? आफ्टर टाइम t। तो मैंने कहा लिमिट कैसे लिखते हैं? लिमिट लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे लिखते हैं? यहाँ लगाऊंगी टाइम की लिमिट, यहाँ लगाऊंगी वेलोसिटी की लिमिट। इतना बात समझ आया नहीं समझ आया? यहाँ पे वेलोसिटी की लिमिट, यहाँ पे टाइम की लिमिट। बेटा जिसको इंटीग्रेट कर रही है बेटा उसकी तो लिमिट लगाऊंगी ना। जब t 0 था तो बेटा वेलोसिटी कितनी थी? t 0 पे नहीं बेटा,
होता जीरो U, भी हो, U. होता u की वैल्यू जीरो, बट अभी मैंने जीरो नहीं माना, आई टेकन एट u। जब t जीरो था तो इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी थी u। जब t बना तो वेलोसिटी कितनी थी And V. तो लिमिट्स ऐसे लगाते हैं, समझ आया? तो कंपेयर करके अभी वेट करो, तुम और समझ Yes, जाएगा। ma'am. अच्छा इंटीग्रेट करो इसको, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dv, हु विल टेल मी? V minus U. v माइनस u, पहले अभी इंटीग्रेट करो, पहले v आएगा V. बेटा, v। किसी को प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ dv v क्यों होता है तो चेक इट आउट। dv इंटीग्रेट करना है u से v, बेटा क्या कोई v है यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए? इज देयर एनी v हियर? नहीं, तो v की पावर 0 कर दो, बेटा ये समझाया था ना मैंने आपको। नाउ हाउ टू डू इंटीग्रेशन, सोच के बताओ फटाफट से, हाउ टू डू इंटीग्रेशन? वी हैव टू don't Ma'am, sleep at the increase bar. the power. Increase the power, so it's 0 plus 1 and the increased power should be written in the denominator. Yes, ma'am. Now Yes, what is the ma'am. final answer? क्या बचा? V. v। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv मेरा v होता है, dx मेरा x होता है, dt मेरा T. ठीक है। चलो v इंटीग्रेट किया, अब लगाना है इसमें लिमिट्स। अच्छा ये a तो बेटा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dt? तो ये है 0 से लेकर t। अच्छा बताओ क्या करते हैं लिमिट्स का, कौन बताएगा मुझे लिमिट्स कैसे रखते हैं? अपर लिमिट Minus lower limit. upper limit Minus minus lower lower limit. limit. इस v को पहले इस जगह रखूंगी तो v ही बनेगा, फिर v की जगह क्या रखूंगी? अपर लिमिट माइनस व्हाट इज द लोअर लिमिट? V minus Minus U. U. इज इट फाइन? Yes, ma'am. ओके यस मैम। नाउ a मैंने सिंपल कॉपी किया, बेटा ये दोनों लिमिट्स क्या एक्सेलरेशन की है टाइम की है, किसकी वैल्यूज हैं दोनों? टाइम की। हम टाइम का मैंने t की जगह मैंने t पुट किया, फिर t की जगह क्या पुट किया मैंने? Minus 0. 0। इज Zero. इट फाइन? श्योर? Yes, ma'am. अच्छा तो ये क्या बचा? मैम राइट हैंड साइड वाला स्टेप समझ नहीं आया। बेटा a को मैंने कॉपी किया, टाइम की बेटा लिमिट्स दोनों, पर टाइम की वैल्यू पहली क्या है? t कॉपी कर दिया, अपर लिमिट माइनस बेटा a को फिर कॉपी किया, फिर टाइम की वैल्यू दूसरी क्या है? 0. 0। ठीक है। अच्छा v minus u is equal to 80, 80. तो इसमें आ गई, देखो u plus 2 80। plus 80. कोई प्रॉब्लम है बच्चा? एनीवन फ्रॉम योर साइड? एनी इशू टू एनीवन प्रेजेंट हियर? No ma'am. No, ma'am. Can I hope so that now beta if you have any single doubt no issue because we will do the second equation also, लेकिन इससे हाथ साफ होगा, इंटीग्रेशन का हाथ यही साफ होगा, लॉजिक यहीं से क्लियर होंगे। आप इसको नोट करो, we have 4 minutes, no issue, we will do the second one also as well। इसे खत्म करो। Do you find this thing boring? No, ma'am. Yes, ma'am. नो मैम Yes ma'am, बोल सकते हो बेटा। No. It's not boring बेटा, ये फिजिक्स है, ये कहीं जिंदगी में बोरिंग हो ही नहीं सकती, कुछ ही बोरिंग होता है। फिजिक्स बोरिंग तब लगती है जो समझ नहीं आती, अगर इसको समझ आए उसको भाई बोरिंग लग सकती है चीज। चलो if you done it, I'm just using what is the second equation of motion? Last thing from my side for the day. Second equation of motion. ms is equal to ut plus half at S equals to half ut plus at square. ut plus apt square. Everyone this is my second equation. Okay. चलो which equation I should use now इन दोनों में से? Ma'am, V1. v1 v is equal to dx by dt. अच्छा, I want to just I want you to go through just in your brain, just go through your class 11th while doing the second equation of motion graphically in your class, in your class 9th when you're doing it graphically, in that thing also you have substituted the value of v from above equation। कुछ याद है? मैम ने कहा था ऊपर से v की वैल्यू कॉपी करो, कुछ याद है ऐसी बातें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर जब हमने Yes. ग्राफिकली बेटा किया था उसमें मैम ने कहा था ग्राफिकली में जब सेकंड इक्वेशन को निकालते थे तो हम कहते थे v की वैल्यू ऊपर से कॉपी करो, इफ यू रिमेंबर। कोई बात नहीं, अगर याद भी बेटा नहीं है Ma'am, तो because v constant नहीं होता। सॉरी Ma'am, because v constant नहीं होता।
हाँ जी, v तो कांस्टेंट नहीं है, v तो वेरिंग है, क्योंकि v बेटा देखो v किस पे डिपेंडेंट है, u और at। बेटा v में t आ रहा है ना, तो कांस्टेंट कैसे मानूं मैं? आई कांट इमेजिन इट इज अ कांस्टेंट। और बेटा वन मोर थिंग, इतना दिमाग ना भी लगाऊं मैं, क्या मुझे v चाहिए इस फॉर्मूले में या क्या चाहिए बेटा मुझे इस फॉर्मूले में? डिस्टेंस। एक्सेलरेशन U चाहिए ना बच्चा, एक्सेलरेशन और u वो दोनों चाहिए। तो इस फॉर्मूले में u और a कहाँ से आता है? यहीं से तो आता है। तो substituting v from equation 1, am I right? How the equation will look like? जल्दी बताओ। Tell me fast. u plus at is equal to dx upon dt. I need to calculate x. This is my x होनी ना बच्चा, डिस्प्लेस पर x ही तो है। क्या करूँ नेक्स्ट स्टेप में? x को छोड़ते हैं यहाँ पर, क्या करूँ नेक्स्ट स्टेप में? Where should I take this dt? dt को उधर ले जाओ। हम क्रॉस dx is equal to u plus at into dt. नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँ बच्चा? Who will tell me? Only small x पता है, पूरा निकालना है। हम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अच्छा, इंटीग्रेशन यहाँ भी किया या इंटीग्रेशन मैंने यहाँ भी किया? बताइए लिमिट्स क्या पुट करूं? यहाँ पर किसकी लिमिट आएगी? टाइम। जब t is equal to 0 है तो क्या है पोजीशन? इमेजिन कर लो कुछ भी। पोजीशन बेटा वेलोसिटी है ना बेटा, होता है 0 हो सकता है कुछ x नॉट हो, हमारी इच्छा है, होता कुछ होता है बॉल को ग्राउंड पे खड़े को ना फेंका गया हो, छत पे खड़े होकर फेंक रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी इच्छा तो उसको 0 मान लो, डरना नहीं है, बाद में इक्वेशन करेंगे इस x नॉट की वैल्यू भी। अच्छा, t 0 पे अगर ग्राउंड पे खड़े हैं तो t पे कहाँ है? x वैल्यू है या s ले लो, तुम्हारी इच्छा हो तो, जो तुम्हारी इच्छा हो कर लो। इज इट फाइन? लिमिट समझ नहीं आई तो बताओ, फटाफट से बताओ। लिमिट समझ नहीं आई तो बताओ। मैम ये 0 क्यों ली है dx में लिमिट? बेटा मैंने कहा एट t इज इक्वल टू 0, क्या आपका मोशन स्टार्ट ओरिजिन से हो रहा है तो मैंने t x इसको 0 पुट करूंगी। अगर ओरिजिन से नहीं हो रहा होगा तो बेटा जो वैल्यू जहां पर होगी वहां से पुट करूंगी। ये बात समझ आया मैंने क्या बोला गलत? ओके मैम। मैंने जनरल से केस ले लिया। लेट्स सपोज तुमने ओरिजिन से स्टार्ट किया बेटा, लेट्स सपोज दिस वाज द पाथ। अब ये बेटा मेरा ओरिजिन है, लेट्स सपोज t इज इक्वल टू यहाँ भी बेटा होता है और तुमने होते यहाँ से जर्नी शुरू की हो, दोनों पॉसिबिलिटी है कि नहीं गलत? यस मैम। मैंने यहाँ से लिया सिंपल करने के लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ फटाफट से, डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ dx इज व्हाट? जल्दी x 0 से x इंटीग्रेट करो बेटा। यहाँ पे दो टर्म है u dt प्लस at dt, करो इंटीग्रेट। u is a constant, ut integration dt is t, ut प्लस इसका बताओ 8t स्क्वायर मैम, 8t स्क्वायर t स्क्वायर बाय 2 ओनली। बेटा पावर नीचे भी मल्टीप्लाई नीचे लिखते हैं ना बच्चा पावर, या नहीं करते हैं? यस पावर 1 है, इंक्रीज पावर 1 एक इंक्रीज पावर करो, वही इंक्रीज पावर कहाँ लिखो? डिनोमिनेटर में। अब लिमिट लगा दे बेटा, लिमिट इज व्हाट? 0 से लेकर जी। अब मुझे बताइए आंसर आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स, बोलिए। Tell me, I'm waiting. Substitute the upper limit कितनी है बेटा x की? What is the value of x? Upper limit S. minus what is the lower limit? Zero. Is it fine? Yes ma'am. Okay. What is the upper limit here? U into what is the upper limit of t? T. Plus half. What is the upper limit of t? T again. T. What is the lower limit? Zero. 0 plus 0. Is it fine or not? मैम हाफ कहाँ से जीरो आए? प्लस जीरो 80 कैसे स्क्वायर है मैम?
बेटा जब मैं यहाँ पुट करूंगी टी की वैल्यू 0 तो क्या बनेगा ये टर्म? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0। बेटा जब यहाँ टी 0 पुट करो तो यहाँ पर कैसे आएगा वैल्यू? टी को 0 पुट करो। यस मैम, ओके मैम। नहीं समझ आएगा बेटा, पहले अपर लिमिट पुट की दोनों में, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट की। जब लोअर लिमिट बेटा पुट की तो कितना आंसर आया? हम ut स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, क्या ये आंसर वही बना बच्चा? x is equal to ut plus half at स्क्वायर? यस मैम। यस मैम। ये तो सर जोर से निकला, जय माता दी। बीच वाले सब में आवाज गायब थी। अच्छा ना, प्लीज बी फ्री सो दैट वी कैन लीव द क्लास, बट बिना उसके खत्म किए नहीं। मुझे बताओ कहाँ अटके, कहाँ फंसे, कहाँ समझ नहीं आया? Those who know the answer, those who know it, they can leave the class. Bye bye. And those who haven't doubt, they can still be there in the class. I'm here only. चल बताओ। थैंक यू मैम। मैम 80 स्क्वायर के नीचे 2 कैसे आया? ये मैम उसके ऊपर वाले स्टेप से एक और बता दो। बेटा इंटीग्रेट, एक मिनट, इंटीग्रेट कैसे करते हैं? अच्छा मुझे अगर इंटीग्रेट करना, लेट्स सपोज इंटीग्रेशन ऑफ x dx करना है। इंटीग्रेशन क्या करते हैं बेटा? इंटीग्रेशन में पावर एक बढ़ाते हैं x स्क्वायर बाय 2 और कोई पावर बड़ी पावर कहाँ बेटा पुट करते हैं? नीचे। यही बात है। इंटीग्रेशन बेटा क्या करते हैं? एक पावर इंक्रीज करते हैं। हमें सेट नहीं पता था। हाँ जी, इसका ना I didn't know this step. अच्छा तुमने इंटीग्रेशन नहीं किया बेटा? हमें इस स्टेप नहीं पता था। अच्छा ठीक, अब समझ आ गया इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बच्चा? यस मैम। अच्छा नाउ डाउट एनीवन एल्स? हाँ मैम डेरिवेशन पीरियोडिक्स में आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? अब बताओ किसको डाउट है? और बिल्कुल ऊपर वाले स्टेप से एक बार बता दो। यहाँ उसके नीचे आ रहा है। यस मैम। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ dx का सिखाया था, क्या होता है? मैम वो x होता है। x ये पता है नहीं पता? क्या करके दिखाऊंगी x कैसे होता है? हम पता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन dx x होता है। इसकी लिमिट 0 से s है। ठीक है, इसमें दो टर्म है तो दो इंटीग्रेशन होंगी। मैं दो टर्म लिख ली, u dt और at प्लस dt। दिखाई दे रहा है? दो टर्म बच्चा, दोनों को इंटीग्रेट करना है मुझे वन बाय वन। तो बेटा u तो मेरा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dt कितना होता है बताओ? इंटीग्रेशन dt जैसे dx का x होता है, dt का तो t होगा। t कॉपी कर दे, t लिखा मैंने ut, तो u तो वैसे था बच्चा, t मैंने कॉपी कर दिया। अच्छा एक तो मेरा कांस्टेंट था, एक को मैंने कॉपी कर दिया। अब t dt है, जैसे x dx है, t dt है, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? मैम t स्क्वायर, t वही रहेगा। भाई इंक्रीज पावर कहाँ जाती है? नीचे। नीचे, तो t स्क्वायर बाय 2 आ गया बेटा, या नहीं? यस मैम। अब ये लिमिट्स है बेटा, ये लिमिट्स किसकी हैं? टाइम की हैं। लिमिट सॉल्व कैसे करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये नहीं करते बेटा। इसके ध्यान, लेट्स सपोज ये 0 से 1 है, जैसे वैल्यू निकालना है इसकी, सब के सब निकालो, तुम इसको कंफ्यूजन है जिसको। ये आंसर था, x dx था, तुमने इंटीग्रेट करा, तुमने इंटीग्रेट कर दिया व्हिच इज x स्क्वायर बाय 2। फिर तुमने पुट की लिमिट्स 0 से लेकर 1, बताना कितना आंसर होगा? हम 1/2 पहले 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, यही करते हैं ना बेटा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यस और नो? यस मैम। तो 1/2 आंसर आ जाएगा। मैंने वही चीज यहाँ की, अपर लिमिट पुट किया माइनस लोअर लिमिट, देखिए क्या मैंने, देख। यस मैम। अब यहाँ देखो, ये पूरी टर्म है, जहां जहां t है बेटा, पहले मैं पुट करूंगी अपर लिमिट, फिर पुट करूंगी मैं लोअर लिमिट, यस और नो? यस मैम। अपर लिमिट बेटा क्या है? t है ना, तो u t की जगह t पुट किया, प्लस हाफ t की जगह t पुट किया, ये तो पूरा आ गया। माइनस लोअर लिमिट क्या है बेटा? 0 है, 0 डालेंगे। 0, तो ये दो 0 आ गए, ये वैल्यू आ गई। आप समझ आया? यस मैम। Anyone else who's having doubt? No worries, ask me. मैम आ गए। और किसी को डाउट है तो रुको, you can leave the class. मैम ये हाफ किससे है? कौन सा बेटा? ये हाफ मैम लास्ट में यही हाफ बेटा, यहाँ से लगा ना, ये हाफ,
ये टर्म यहाँ लिख रही हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ a t dt ये था बेटा, ठीक है ना। a का बेटा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ t dt कितना होता है, t की पावर 1 है। क्या करते हैं बेटा, पावर को एक बढ़ाते हैं, यस मैम। तो पावर बढ़ाई, अब वो बड़ी पावर कहाँ लिखते हैं बच्चा, कहाँ पुट करो उस पावर को, मैम नीचे को लिख देते हैं 3 डिवाइडेड बाय। 20/2 आ गया देख। यस मैम। यस मैम। चलो, एनीवन एल्स? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अभी स्टिल है तो बाकी सब 4